हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंप्लीट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। सेकेंड, टू पार्टीज, एक पार्टी जो है वो ऑफर करने वाली होनी चाहिए, दूसरी पार्टी जो है एक्सेप्टेंस करने वाली होनी चाहिए। द फर्स्ट essential for creating a contract is an offer. There must be at least two parties, one making the offer and another accepting it. It must be clear and definite. For example, A says to B, I wanted to sell my car. बट कौन सी कार आपको सेल करनी है ये आपको डेफिनेट या क्लियर कट मीनिंग जो है वो एक्सेप्टेड जो करने वाली है those party they wanted to accept it that contract, they must know that what exactly which car he is going to sell to us. The person making the proposal is called an offerer or promisee, and the person accepting the offer is called the offeree and promisee. So offerer and offeree, promiser and promisee, both parties are required to make the contract. नाउ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो दोस्तों यहाँ पे इंटेंशन अगर क्रिएट होता है लीगल रिलेशनशिप में तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। सो हियर सोशल एग्रीमेंट एंड डोमेस्टिक नेचर एग्रीमेंट आर नॉट क्रिएटिंग intention to create legal relationship. That's why we can observe that these are the not valid contract. So you can see the Balfour versus Balfour case. What happened in Balfour versus Balfour case, you can see here and you can read it from that slide. दोस्तों यहाँ पे भी बल्फर वर्सेस बल्सस एंड मेरिट वर्सेस मेरिट, दीज केस टू केसेस आर इम्पॉर्टेंट वाइल वी आर डिस्कसिंग द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. नाउ दोस्तों वी हैव अ थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. Section 10 gives to us the parties to an agreement must be competent to the contract. Section 11 said that of the contract, यहाँ पे Section 11 the Contract Act 1872, here every person is competent to the contract who is of, यहाँ पे Section 11 gives to us, यहाँ पे एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ. अगर यहाँ पे एज ऑफ मेजोरिटी है और साउंड माइंड है तो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो दीज आर द पर्सन हु इज कैपेबल टू मेक कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दे हैव अ कैपेसिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट. And who is the disqualified? Who is incompetent to the contract? Negative definition. Minors are incompetent to the contract. Person of unsound mind and person disqualified by the law. These are the. So यहाँ पे भी केस लॉज है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष. You can refer this capacity to the contract module number third. When we discover that part, I will again so we will let them. Age of majority. According to Indian Majority Act 1875, Section 3 defines the age of majority means who is complete 18 years. 18 years जिसने complete कर लिया है that person will call the majority person. Age of majority, how we can decide that those who are completing the 18 years, आपकी class yeah. And to enter into the contract 18 years is also required. A minor who has not attained 18 years is termed as a minor. स्पेशल केसेस में क्या होता है ये दिया गया है, incapacity through status या who is not disqualified from contracting by any act, who is not disqualified, who is अरे यार यहाँ पे who is is disqualified. दोस्तों this list is a who is a disqualified from the contracting by any law, that political status में align enemy है, ambassador and foreign sovereign से, financial status है, then insolvent से, legal status and convict person से. So these are the person, they are the incapable disqualified from the contracting party. तो लॉफुल कंसिडरेशन,
लॉफुल कंसिडरेशन इज ऑल्सो रिक्वायर समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कुछ देने के बदले में कुछ लेना है, तो समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कुछ देने के बदले में कुछ लेना है. जस्टिस पैटरसन सेज consideration means something which is for some value in the eye, and it may be some benefit to the plaintiff or some disadvantages to the defendant. यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि आपको बेनिफिट ही मिलेगा, समटाइम इट विल डिसएडवांटेजेस टू द डिफेंडेंट एज वेल. कंसिडरेशन इज़ वैलिड इफ़ इट इज़ नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब लॉ ने अगर यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं किया होगा, एंड देन नॉट फ्रॉडुलेंटली, अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वहाँ कुछ भी फ्रॉडुलेंटली करके आपने कुछ गेन नहीं किया है. डज नॉट इन्वॉल्व इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर. अगर आपका जो कंसिडरेशन पार्ट है, आप इफ़ यू रिसीव दैट कंसिडरेशन, किसी को इंजरी पहुंचाने के बाद में अगर कुछ कंसिडरेशन आप रिसीव करते हैं तो वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. सो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन मतलब व्हाट एग्जैक्टली. ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 लाख एंड हियर बी प्रॉमिस टू pay rupees 1 lakh is the consideration for A's promise to sell the car, and A's promise to sell the car is the consideration for B promise to pay 1 lakh rupees. यहाँ पे दोनों के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा. लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट मतलब लॉ फील्ड में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वी विल टेक दी मीनिंग हियर. ऑब्जेक्ट मतलब मोटिव. नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉ ने यहाँ पे सपोज ड्रग डीलिंग्स करना ये ऑब्जेक्ट अगर किसी का है, पर लॉ ने तो NDPS एक्ट में उसको मना कर दिया. नॉट फ्रॉडुलेंटली मतलब आपका अगर एम ही फ्रॉडुलेंट करना है, तो यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन में थोड़ा माइनरली डिफरेंट है, नॉट मोर दैन दैट. नॉट फ्रॉडुलेंट एंड इट शुड नॉट बी इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के नहीं होना चाहिए. फ्री कंसेंट इज ऑल्सो रिक्वायर. फर्दर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर नॉट ओनली द कंसेंट बट same thing in same sense when if I wanted to sell my car and you also wanted to buy my car, so we are saying that same thing in same sense, that is required for the free consent. According to section 14, consent is said to be free when it is not caused by coercion or undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. So this agreement not expressly declare void, expressly declared void नहीं होनी चाहिए. And then certainty of meaning, possible performance, legal formalities must be complete. These all are the essential part for the valid contract. Thank you.